ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ यानी कि त्रिभुजां ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ यानी कि ਸਮਰੂਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਮਰੂਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अपने को आंदी पई है सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। ते समरूपता यानी सिमिलैरिटी डिस्कस करन तो पहला आपां गल करदे हां सरबंग समता दी। सरबंग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। इट मीनस जे आपां गल करिए कि किस तरह ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ मीन्स ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ means all circles, comma सारे वर्ग means all squares। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ means all rectangles। हाँ जी, ये होंदे ने समरूप। सारे चक्कर एक दूजे के समरूप होणगे, सारे वर्ग एक दूजे के समरूप होणगे ते सारियां आयतां एक दूजे के समरूप होणगियां। सो इत्थे मैं लिख दिना समरूप हुंदे हन मीन्स आर सिमिलर। हाँ जी, इट मीनस एक छोटा चक्कर है जेड़ा ओहो एक वड्डे चक्कर दे सिमिलर होएगा। इसी तरह एक जेड़ा छोटा वर्ग है ओहो एक वड्डे वर्ग दे सिमिलर यानी कि समरूप होएगा। ते एक छोटी आयत है जेड़ी ओहो एक वड्डी आयत दे समरूप होवेगी। हाँ जी, इस तरह अपने कोल ते जेकर अगे गल करिए कि आपां फिर सिमिलैरिटी ते कॉन्ग्रुएंसी दे विच की रिलेशन बिठा सकते हैं या इन्हां दे विच की रिलेशन हुंदा है। हाँ जी, उहनूं देखदे हां आपां। जेकर मैं दो चक्कर लवां ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲੈਣ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਇਤ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। इट मीनस कि सारियां दियां सारियां कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जिहड़ियां हुंदियां ने ओह समरूप हुंदियां ने। इहदे बारे लिखदे हां, इस लई सारियां ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਮਰੂਪ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ all congruent shapes are similar also। पर इसका जिहड़ा उल्टा है कि सारियां समरूप आकृतियां ने जिहड़ियां ओह सरबंग सम हुंदियां ने। हाँ जी, जेकर आपां इन्हां दी ही गल करिए, ये चक्कर ने आपस दे विच समरूप होणगे क्योंकि देखण नूं ये इक्को जिहे ने, पर की ये सरबंग सम होणगे कि मैं इस चक्कर नूं इहदे उत्ते रखूंगा तो इहनूं पूरा पूरा ढक लेगा? नहीं। इसी तरह जेकर मैं छोटे वर्ग नूं वड्डे वर्ग ते रखूंगा ये भी इस नूं पूरा पूरा नहीं ढकेगा। इसे तरह रैक्टेंगल्स के केस दे विच भी अपने कोल होएगा कि जिहड़ा छोटा है वह वड्डे नूं पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा। जे उहनूं पूरा पूरा नहीं कवर करता पिया, इट मीनस उहनां दा साइज़ है जिहड़ा ओह अलग अलग है, ते साइज़ अलग अलग होवे तां जिहड़ियां आकृतियां ने ओह सरबंग सम नहीं हुंदियां। इट मीनस सिमिलर आकृतियां ने जिहड़ियां ओह सरबंग सम होण यह जरूरी नहीं, सिर्फ ओही सिमिलर यानी कि समरूप आकृतियां सरबंग सम होणगियां जिन्हां दी शेप ते साइज दोनों ही बराबर होणगे। स्टूडेंट्स हुण डिस्कस करते हैं आपां बेसिक कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियां दी समरूपता लई मुੱਢਲੀਆਂ शर्तां की ਹੁੰਦੀਆਂ ने। दो आपां नूं आकृतियां ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ यानी कि ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ यानी कि समरूप। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 90, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਧਰ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ 100 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਥੇ 100 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, 60 ਦੇ ਬਦਲੇ 60 ਪਿਆ, 110 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 110 ਡਿਗਰੀ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰੂਪ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि सिमिलर फिगर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ corresponding angles are equal यानी कि संगत कोण बराबर हुंदे हन। हाँ जी, अगे गल करिए दूजी कंडीशन दी तो वह अपने कोल हुंदी है। हाँ जी, इत्थे आपां देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर की साइड है, इधर है 4 सेंटीमीटर की, इत्थे यह 4 सेंटीमीटर आ वाली साइड तो उधर है उसके बदले 8 सेंटीमीटर की साइड, इधर 3 सेंटीमीटर उसके बदले 6 सेंटीमीटर तो 3.5 सेंटीमीटर उधर उसके बदले 7 सेंटीमीटर। आपां देख सकते हैं कि हर बार हो रहा भुजा का डबल, हर केस दे विच जिहड़ी भुजा है वो दुगनी हो रही है। तो इस तो आपां ये कह सकते हैं कि जेकर मैं 2 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर के नाल अनुपात लवां तो मैनू मिलता है 1/2 यानी 1:2। फिर मैं इस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के नाल अनुपात लवां तो उत्थों भी मैनू मिलेगा 1/2 1:2। 3 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर के नाल अनुपात जिहड़ा होएगा वह भी 1/2 होएगा। 3.5 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर के नाल जिहड़ा अनुपात यानी कि रेशो होएगी वह भी होएगी 1/2 या 1:2। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि जदों दो आकृतियां या दो फिगर्स ने जिहड़ियां वो सिमिलर यानी कि समरूप हुंदियां ने तो उन्हां दी कोरसपोंडिंग साइड्स की रेशो हुंदी है इक्वल। सो आपां जदों सिमिलैरिटी की गल करते हैं तो आपां कोरसपोंडिंग साइड्स की रेशो की गल करते हैं कि रेशो जरूर इक्वल होनी चाहिए है। हाँ जी, उन्होंने साइज़ छोटे वड्डे हो सकते हैं, उन्होंने लेंथ्स छोटियां वड्डियां हो सकदियां ने जिवें कि इन्हां फिगर्स दे विच भी है, पर उन्हों का अनुपात यानी कि उन्हों की रेशो हर बार आनी चाहिए है सेम। से यही है अपने कोल दूसरी कंडीशन जिहड़ी कि बेसिक कंडीशन है दो आकृतियां की समरूपता दे लई। सो दूजी कंडीशन लिखते हैं रेशो ऑफ corresponding sides is equal। या इनू आपां कह सकते हैं कि corresponding sides are proportional या are in proportion, इस तरह भी कह सकते हैं। पंजाबी च लिखांगे संगत
ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ बराबर हुंदा है। हाँ जी, सो ये दोनों जड़ियां कंडीशंस ने उन्हां दे अकॉर्डिंग एक तां दो जड़ियां समरूप आकृतियां होणगियां उन्हां दे संगत कोण बराबर होणगे। इट मीनस पहली आकृति दे ਜਿਹੜੇ चार कोण ने उसे तरह ਦੇ चार कोण दूजी आकृति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ समरूप ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ means all equilateral triangles are similar to each other। हाँ जी, ऐसा क्यों? ਇਹਦਾ ਕੀ रीजन है? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਲਈਏ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਸੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 60 60 60 ਤਿੰਨੋਂ 60 ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਉਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ उसके एंगल्स भी 60 होणगे तो जेकर आप साइड लेंदे हां हरेक 3 सेंटीमीटर तो आप रेशो देखिए साइड्स की 2/3 आएगा, अगेन 2/3 आएगा, अगेन 2/3 आएगा, इधरों भी। सो तीनों रेशो सेम होणगियां ते तीनों एंगल्स भी सेम ने, इसलिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ यानी कि ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ यानी कि ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। स्टूडेंट्स एक गल होर ध्यान विच रखण वाली है कि जिहड़ियां शेप्स देखण नूं इक्को जिहियां होणगियां ओहो ही सिमिलर हो सकदियां ने। उस दे लई भी आपां जिहड़ियां कंडीशनस ने वो चैक करांगे, जिहड़ियां अपणियां बेसिक कंडीशनस ने वो चैक करांगे। दो आकृतियां जिहड़ियां बिल्कुल अलग शेप दियां होण वो कदे भी सिमिलर नहीं हो सकदियां। सुपोज एक सर्कल दे नाल एक क्वाड्रीलेटरल यह कदे भी सिमिलर नहीं हो सकते। इसी तरह एक ट्राइंगल दे नाल एक सर्कल या एक ट्राइंगल दे नाल क्वाड्रीलेटरल ये भी सिमिलर कदे भी नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स इस सारी डिस्कशन तो बाद आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस नूं। स्टूडेंट्स तो हुण आने एक्सरसाइज 6.1 ते उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की है फिल इन द ब्लैंक्स खाली थावां भरनियां ने। आपां फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं ऑल सर्कल्स आर डैश सारे चक्कर डैश होंदे हन। हाँ जी आपां नूं पता सारे चक्कर समरूप होंदे हन। ऑप्शनस दे विच समरूप है सिमिलर यानी कि ते कॉन्ग्रुएंट यानी कि सरबंग सम। हाँ जी सरबंग सम चक्कर तो वो होंदे ने जिहड़े एक दूजे नूं ढक लैण। जदों आपां सिर्फ चक्कर की गल करिए उन्हां दे अर्धव्यास की गल ना करिए अर्धव्यास सेम होणगे तां ओह कॉन्ग्रुएंट होणगे। सो अर्धव्यास की कोई गल नहीं हुई, इट मीनस वो आपस च होणगे सारे दे सारे सिमिलर। सो इस दे विच आएगा अपने कोल सिमिलर यानी कि सम रूप देखण नूं इक्को जिहे यानी कि उन्हां दा रूप है इक्को जिहा। ऑल स्क्वेयर्स आर डैश। हाँ जी इहदा भी आंसर उही आएगा अपने कोल सिमिलर क्योंकि उन्हां दे साइज़ अलग अलग हो सकते हैं पर उन्हां दे एंगल्स होणगे सेम। सो सारे स्क्वेयर्स आपस दे विच होणगे सिमिलर। हाँ जी जो आप इसकी डिस्कशन कर रहे सी सिमिलैरिटी की उत्थे भी आप डिस्कस किया सी। सो सिमिलर यानी कि सम रूप ही आएगा इसका आंसर भी। अगला ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर सारियां किस तरह दियां जड़ियां त्रिभुजां ने वो सिमिलर यानी कि समरूप हुंदियां ने। हाँ जी आपां डिस्कस किया सी कि सारियां समभुजी त्रिभुजां हुंदियां ने जड़ियां यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो हुंदियां ने समरूप। सो इट मीनस इसका आएगा आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इत्थे इक्विलेटरल यानी कि समभुजी ते
ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰੂਪ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂ ਪੋਲੀਗਨਸ यानी कि बहुभुज ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स जिन्हां ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ आर सिमिलर ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। पहला पार्ट है इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर। हाँ जी, ਆਪਾਂ कंडीशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ वर्ड यानी कि एंगल्स होने चाहिए ने बराबर ते देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर। हाँ जी, उन्होंने कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए है, यानी कि अनुपात बराबर होना चाहिए, तो उसनू बोलते होंगे आपां प्रोपोर्शनल। बराबर अनुपात नू प्रोपोर्शनल बोलिया जाता है। सो इस दे विच आ जाएगा अपने कोल प्रोपोर्शनल। इस तरह पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट दे विच प्रोपोर्शनल की जगह जिहड़ी ऑप्शन होएगी वो भर सकते हैं पंजाबी च। अगे आने आ सैकेंड क्वेश्चन ते गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स, यानी कि आपां उदाहरणां देणियां ने दो समरूप आकृतियां दियां ते जिहड़ियां आकृतियां समरूप ना होण ऐसियां दियां। हाँ जी, आपां समरूप आकृतियां दे विच तां दे सकदे हां एग्जांपल्स स्क्वेयर्स। हाँ जी, तो उस तो बाद बी दे सकते हैं आप सर्कल्स, यानी कि इत्थे वर्ग आ सकता तो इत्थे आ सकता अपने कोल चक्कर। हाँ जी, नॉन सिमिलर फिगर्स। हाँ जी, ये आप शेप्स बिल्कुल ही चेंज कर देनी। एक सर्कल दे नाल एक ट्राइंगल ले लेने, सर्कल एंड ट्राइंगल। उस तो बाद ट्राइंगल दे नाल ले लेने आपां क्वाड्रीलेटरल। यानी कि इनू लिखांगे आपां चक्कर अते त्रिभुज, चक्कर अते त्रिभुज। ते इहदे विच आएगा अपने कोल त्रिभुज अते क्वाड्रीलेटरल यानी कि चतुर्भुज। सो बिल्कुल डिफरेंट शेप दी एग्जाम्पल दे देनी जो नॉन सिमिलर फिगर्स की गल करनगे। हाँ जी, आने एक्सरसाइज दे लास्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन ते उन्होंने पूछा स्टेट वैदर द फॉलोइंग क्वाड्रीलेटरल्स। हाँ जी, चतुर्भुज दिते हुए ने आर सिमिलर और नॉट, यह समरूप हैगे ने या नहीं। हाँ जी, आप देख सकते हैं जे साइड्स नूं देखिए तो ये 1.5 सारियां भुजावां 1.5 ने तो वो सारियां 3 ने, यानी कि रेशो लईए तो इत्थे भी 1:2 आएगी, इत्थे भी डबल हो रहा 1:2, इत्थे भी 1:2, इत्थे भी 1:2 आएगी जो इन्हां दा अनुपात लवांगे तां। पर आपां देख सकते हैं कि जिहड़े एंगल्स ने इसदे एंगल्स डिफरेंट ने उसके एंगल्स नालों, क्योंकि वो सारे एंगल्स 90 ने। तो इत्थे आपां देख सकते हैं दो ऑब्ट्यूज एंगल्स यानी कि दो अधिक कोण ने 90 तो ज़्यादा, तो दो एक्यूट ने यानी कि 90 तो घट। सो आपां गल कीती सी कि दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 यानी कि नहीं। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज 6.1 होंगी है कंप्लीट। मैनू उम्मीद है जो अज आप सारी डिस्कशन की सिमिलैरिटी तो उस तो बाद एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनू कमेंट सैक्शन के जाके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करो। तो वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।